Hello everyone. Let us begin with the topic of Unit 1 of Control System. Initially, in Control System. Introduction to Control System. Let's begin with the introduction of the Control System. What is a Control System actually? Control System means any quantity of interest in machine or mechanism is maintained or altered in accordance with desired manner. It simply suggests that any process or system which is being controlled at a desired input to obtain a desired output is said as a controlled system. Basically, the output quantity of the system is controlled in accordance with the parameters. To obtain a desired output, we control inputs of any system, and control system thus obtained uh, is in operation with controlled parameters. The definition lies like a system which controls the output quantity is known as control system. Based upon the different scenarios in the system, the control system may be classified into two types. One is known as open closed loop system, open control system and open loop control system, and another one is known as closed loop control system. Basically, the definitions involved in the control systems are like, one is first definition we will be talking about is control variable. What is known as control variable? Control variable is the amount of the amount or the quantity which is to be controlled by any means is known as control variable. In as the definition, as the statement says, as the statement says, it is the quantity or condition that is measured or controlled. Next, the controller. Controller. What is a controller? Controller is a segment. Uh, Controller is a segment. For example, a system parameters which are controlled through any means. Simply, a controller, a device on which we perform operations that is indirectly making our output change with the desired parameters of control. So controller means measuring the value of control variable of the system and applying a manipulated variable to a system to correct or to limit the deviation of the measured value to the desired value. It सपोज हम ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, एक उसके कुछ इनपुट पैरामीटर्स हैं, मतलब हम उस सिस्टम में कुछ इनपुट दे रहे हैं एंड कुछ आउटपुट हम उससे ऑब्टेन कर रहे हैं. अगर जो आउटपुट हम ऑब्टेन कर रहे हैं दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द डिज़ायर्ड आउटपुट, यानी कि अगर हम चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम चाह रहे हैं हम इनपुट दें 2 वोल्ट, आउटपुट लें अगर हम 5 वोल्ट, तो एक ऐसा सिस्टम जो इस 2 वोल्ट इनपुट को चेंज करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करे, दैट इज नोन एज अ कंट्रोलर. दैट सिस्टम इज नोन एज अ कंट्रोलर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम इस चीज़ को ले रहे हैं कि कंट्रोलर क्या चीज़ है. कंट्रोलर एक ऐसा पैरामीटर है जो इनपुट को कंट्रोल करके आउटपुट को डिजायर्ड फंक्शन में देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांसफार्मर का भी हम कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल ट्रांसफार्मर्स होते हैं 110 किलो वोल्ट से वो 120 किलो वोल्ट तक ले जाते हैं, 100 समथिंग लिख के जाते हैं. तो बेसिकली वो कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट हो सकता है. ठीक है. किसी भी सिस्टम, इट्स नॉट डिफाइन कि हम किसी भी सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. प्लांट क्या चीज़ है? प्लांट वो चीज़ है जो इंटायर प्रोसेस है जहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं, जो इनपुट ले रहा है और आउटपुट ऑब्टेन कर रहा है. दैट कंप्लीट सिस्टम इज नोन एज अ प्लांट.
तो प्लांट की डेफिनेशन क्या है? अ प्लांट इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विच इज अ सेट ऑफ मशीन पार्ट्स फंक्शनिंग टुगेदर। ठीक है, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स भी हो सकते हैं, लिमिटेड पार्ट्स भी हो सकते हैं, वो उन सब पार्ट्स को मिला के हम एक प्लांट को डिफाइन करते हैं। एंड सिस्टम, सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं जो एक साथ, यानी कि सिस्टम एक छोटा सा पार्ट हो गया प्लांट का। प्लांट एक पूरा बड़ा प्रोसेस है, सिस्टम उस प्लांट का एक छोटा सा प्रोसेस है जहाँ पे हम कंट्रोल्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंसेस क्या है? डिस्टर्बेंसेस वो हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी इनपुट को, कोई इनपुट हम डिजायर्ड दे रहे हैं एंड आउटपुट आउटपुट हम ऑब्टेन कर रहे हैं। इन द प्रोसेस मान लिया हम फॉर एग्जांपल हम कुछ इनपुट दिया एंड कुछ आउटपुट लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उस चेंजेस को हम एक तरह सॉर्ट ऑफ थिंग्स होती हैं जो कहते हैं हम डिस्टरबेंसेस, जिसकी वजह से हम इनपुट में कुछ चेंजेस नहीं किया लेकिन वो इनपुट डिस्टरबेंसेस के साथ ऐड होके एक अनडिफाइंड आउटपुट दे रहे हैं जो हमारी अनडिजायर्ड है। तो डिस्टरबेंसेस बेसिकली अनडिजायर्ड थिंग होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है। हम कोशिश करते हैं कि दीज डिस्टरबेंसेस शुड बी एट द मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट इज फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल क्या चीज़ है? यानी कि इनपुट दिया, आउटपुट दिया, अब आउटपुट से हम वापस अगर हम इनपुट को कंपेयर करते हैं, अगर हमें लगता है कि आउटपुट जो है वो हमारा डिजायर्ड नहीं है एंड कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, तो हम आउटपुट को कंपेयर करते हैं विद इनपुट एंड इस चेंज के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो फीडबैक कंट्रोल क्या है? इट इज अ बैक फ्लो प्रोसेस व्हिच इज डन फ्रॉम आउटपुट एंड टू इनपुट एंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म, सर्वो जो वर्ड है वो काफ़ी पुराना है। ठीक है, सर्वो मींस सेल्फ, मैकेनिज्म मतलब ऑपरेशन, यानी कि सेल्फ ऑपरेशन को हम कहते हैं सर्वो मैकेनिज्म। तो एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को कंट्रोल कर पाए, दैट इज नोन एज सर्वो मैकेनिज्म। ठीक है, अब जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, दो टाइप के सिस्टम होते हैं। ओपन लूप सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां इनपुट दिया एंड आउटपुट ऑब्टेन किया। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को सिंगल मतलब एक ही साइड ऑपरेशन होता है, दैट इज फ्रॉम इनपुट एंड टू आउटपुट एंड। ठीक है, तो हम इसमें जो आउटपुट होता है वो प्री डिफाइंड होता है कि हम ये वैल्यू हम चाहते हैं विद द करस्पॉन्डिंग इनपुट्स। ठीक है, यानी कि हमने एक इनपुट सेट किया एंड इनपुट के अकॉर्डिंग हमें उस आउटपुट को ऑब्टेन हो जाता है। यानी कि हम पहले से ही ये चीज़ें प्रोसेस कर लेते हैं कि हमने ये इनपुट देना है तो इस इनपुट से हमें ये आउटपुट मिलेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम कोई भी रैंडम इनपुट्स देंगे तो हमारे पास रैंडम आउटपुट्स मिलेंगे। ठीक है, डिजायर्ड इनपुट आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, तो डिजायर्ड आउटपुट के लिए हमें डिजायर्ड इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम क्या है? क्लोज लूप सिस्टम क्या? इनपुट से चलता है, आउटपुट पे जाता है, देन आउटपुट से कंपेयर होता है दोबारा से इनपुट एंड इस प्रोसेस को एक साइकिल बन जाती है, यानी कि बार बार ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो इस चीज को हम कहते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम। ठीक है, यानी कि वो एक कंप्लीट सर्कल में चल रहा है। तो क्लोज्ड लूप सिस्टम ऑब्टेन करने, सॉरी, डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे? बार बार हर स्टेज पे हम अपनी आउटपुट को कंपेयर करेंगे विद इनपुट एंड आउटपुट ऑब्टेन करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक रखेंगे जब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता या हमारी एरर ज़ीरो नहीं हो जाती। ठीक है, फीडबैक। फीडबैक क्या चीज़ है? आउटपुट को कंपेयर करना विद द इनपुट। ठीक है, एंड इस चीज़ को प्रोसेस, ये प्रोसेस है हमारा फीडबैक का। क्यों करते हैं हम? बेसिकली ये क्लोज लूप सिस्टम में होता है। क्यों करते हैं? बिकॉज ताकि डिस्टर्बेंसेस हमारे हट सकें या हमारा डिजायर्ड आउटपुट एग्जैक्टली मिल सके। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब फीडबैक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम एक कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास एक ओपन लूप सिस्टम है
जिसका फंक्शन हमारे पास दिया GS, एक फीडबैक लूप है विच इज गिवन बाय HS, आउटपुट सिग्नल है गिवन बाय CS, इनपुट है RS। तो हमने अगर हम देखते हैं तो फीडबैक सिग्नल हमारा क्या है, हम कंसीडर कर लिया हमारा फीडबैक सिग्नल इज BS। तो BS इज डिफाइंड एज HS, ठीक है, यानी कि फीडबैक लूप का जो गेन है मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट, ठीक है। अब GS क्या है हमारे पास, इनपुट से आउटपुट लेने का गेन, यानी कि दैट इज CS अपॉन RS, ठीक है। एंड ES क्या है, ES वो वैल्यू है जो कंपेयर कर रही है विद द वैल्यू ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दैट इज RS माइनस ऑफ BS, BS हमने लिखा था HS इनटू CS, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमने लिखी है CS, ये वैल्यू हम वहाँ पे हम वहाँ पे ये वैल्यू पुट अप करेंगे, वैल्यू पुट अप करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी एंड जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन फाइनली इवैल्यूएट होगा दैट विल बी CS अपॉन RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ क्या थी कि हमने जो फीडबैक किया है दैट इज नेगेटिव फीडबैक। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं तो ये जो प्लस है आपका, प्लस प्लस विल बिकम माइनस, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वेशन हमारा डिफाइन करती है द टाइप ऑफ फीडबैक, कैसा है फीडबैक एंड व्हाट आर, इसी इक्वेशन से हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फीडबैक, कैसा फीडबैक रहेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं व्हाट इज ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन क्या है, इट इज द ओवरऑल गेन, ओवरऑल गेन जो होता है, ओवरऑल गेन होता है ओवरऑल गेन जो हमारा सिस्टम का कंसिडर करता है वो है 1 प्लस GSHS, ओपन लूप सिस्टम 1 प्लस GSHS से हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए हमने कंसिडर किया हुआ है कि दैट इज 1 प्लस GSHS, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव फीडबैक लेंगे तो दैट इज 1 माइनस GSHS। अगर हम ओवरऑल सिस्टम गेन की बात करते हैं तो अगर सिस्टम का ओवरऑल गेन GS अपॉन 1 प्लस GSHS हो गया, अगर हम किसी तरीके से GSHS हम पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर कर लेते हैं तो हमारा जो ओवरऑल गेन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी ओवरऑल गेन विद इंक्रीज, ठीक है। हम ये वैल्यूज अगर हमारे सिस्टम जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन इवैल्यूएट हुआ है उसमें रखते हैं तो हमारे पास ओवरऑल गेन मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सिस्टम जो होता है कंट्रोल सिस्टम, अगर हम GSHS की बात करें इक्वल टू -1 रखते हैं तो हमारा जो ये सिस्टम है 1 माइनस GSHS will tend to infinity 0 and the transfer function would tend to infinity। तो ऐसे किसी सिस्टम की गेन अगर इनफाइनाइट जाता है तो उस सिस्टम को हम अनस्टेबल सिस्टम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है, अगर हम स्मॉल चेंज इन इनपुट पे हम थोड़ा सा चेंज इन आउटपुट मेजर कर पाते हैं तो दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी एंड सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज 1 अपॉन GH, ठीक है। यानी कि इनपुट हमने प्रोवाइड किया एंड इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक आउटपुट ऑब्टेन किया। नॉइज़, नॉइज़ के बारे में बात करेंगे। नॉइज़ क्या है, द चेंजेस इन द सिस्टम जो एट रैंडम हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में, अभी इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन टाइप हम उसको कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक लीनियर सिस्टम, एक नॉन लीनियर सिस्टम, एक टाइम वेरिंग सिस्टम, एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। यानी कि लीनियर क्या है, जहाँ लीनियर सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे हमारी लीनियर इक्वेशंस, मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशंस अप्लाई हो सकती हैं। यानी कि वो ऐसा सिस्टम जो सुपरपोजिशन लॉ फॉलो करता है उस सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। नॉन लीनियर सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे हमारी सुपरपोजिशन या
ऐसे लॉस हमारे अप्लाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जो टाइम के साथ वेरी हो रहा है उसको टाइम वेरिंग कहते हैं। ऐसा सिस्टम जो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, दैट इज फिक्स्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर इनपुट दिया, पर्टिकुलर आउटपुट ऑप्टेन किया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उसका आउटपुट हम मेजर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ सिस्टम्स हैं जो चेंज हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ऐसे सिस्टम को कंसीडर नहीं करेंगे, दैट आर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट डाटा सिस्टम, जो हमारे डिजिटल इनपुट्स एंड डिजिटल आउटपुट्स पे अप्लाई होता है। बेसिकली डिजिटल आउटपुट्स जेड ट्रांसफॉर्म में मैप होते हैं, एंड कंटिन्यूस डाटा सिस्टम्स जहाँ पे हमारा कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं, जो हमारे एस डोमेन या हम कहते हैं लाप्लास डोमेन में सिस्टम कंसिडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अडप्टिव कंट्रोल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो अपनी स्टेप साइज यानी गेन को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाए इन कॉरस्पॉन्डिंग विद द आउटपुट चेंज, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम यानी कि फॉर एग्जांपल आउटपुट, अगर हमें लग रहा है कि हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा चेंज ला रहा है एंड हमारे इनपुट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं, तो हम ऐसे सिस्टम में हम अडप्टिव कंट्रोल यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे जो एरर सिग्नल को है वो एनलार्ज कर देता है, जिससे हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है आउटपुट की वो क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम। ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑलमोस्ट मैप होके रहती है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में आती हैं, जहाँ पे चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, उस चीज़ को हम ऑप्टिमाइज सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट सिंगल वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि एक सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, दैट इज नोन एज सीएसओ सिस्टम। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सीएसओ एसआईएसओ सिस्टम, यानी कि हम एक इनपुट डाल के एक आउटपुट चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है। एक होता है मीमो सिस्टम, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे मल्टीपल इनपुट हमने सिस्टम को दिए एंड मल्टीपल आउटपुट हमने सिस्टम से लिए, ठीक है। हम ज़्यादातर जो एनालिसिस करेंगे वो हम सिंगल वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम पे करेंगे। इन द नेक्स्ट चैप्टर्स वी विल नॉट बी डूइंग मीमो सिस्टम्स और मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स, ठीक है। Now this is the comparison between open loop system and a closed loop system. Open loop system एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्रॉपर इनपुट के साथ प्रॉपर आउटपुट मिलता है, whereas closed loop system is closed loop system is एक इनपुट के लिए आउटपुट हो, तो ऐसे सिस्टम को हम फीडबैक के थ्रू गवर्न करते हैं, जबकि हमारे ओपन लूप सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं होता है। सेकेंड इज इट इज़ ईजियर टू बिल्ड। नेक्स्ट क्लोज लूप सिस्टम में डिफ़िकल्ट टू बिल्ड, क्यों? क्योंकि इसमें फीडबैक्स होते हैं, ठीक है। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम इज़ वेरी वेरी हाई। रीज़न बीइंग, एक इनपुट जो होता है वो फिक्स होता है एंड हमें आउटपुट जो मिलता है वो भी फिक्स मिलता है, तो फिक्स इनपुट के लिए फिक्स आउटपुट हमारा परमानेंटली स्टेबल रहता है, कोई चेंज हमें नहीं मिलता है। जबकि हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम में हमारा कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, बिकॉज 1 प्लस GSHS, अगर कोई थोड़ी बहुत एरर्स भी आएंगी या मान लेते हैं हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस आती हैं, तो हमारा ओवरऑल सिस्टम गेन इज चेंज्ड, ठीक है। अगर पॉजिटिव वे में है तो ठीक है, नेगेटिव वे में होगी तो हमारी एरर ज़्यादा हो जाएगी, एरर की वजह से हमारा सिस्टम गेन ड्रॉप। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम्स आर कंपैरेटिवली लो, लेस स्टेबल, ठीक है। अब फीडबैक इज प्रेजेंट, फीडबैक इज एब्सेंट, कॉमन चीज़ है। एग्जांपल्स क्या है? ओपन लूप सिस्टम के हमें ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ फर्नेस, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, ठीक है। एंड जबकि हमारे पास एग्जांपल्स क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक हो गया प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, एक स्पीड कंट्रोल सिस्टम और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल एसी की हम बात करते हैं, एसी में क्या है, एक पर्टिकुलर डिजायर्ड वैल्यू सेट करके हम एक पर्टिकुलर
फीडबैक लूप में छोड़ देते हैं, जिससे हमारा सिस्टम स्टेबल ऑपरेशन पे रहता है। ठीक है, थैंक यू।